Welcome to the first ever Torah Tuesday. We're sitting in my office at Prairie College in Three Hills, Alberta, where I am professor of Old Testament, and this is where I get to spend my days studying the Bible and finding ways to communicate it both in writing and in the classroom. मैं आप सबों का ये पहले टोरा ट्यूसडे में स्वागत करती हूँ। मैं मेरे ऑफिस में हूँ और ये जो है प्रेरी कॉलेज लंदन में है, जहाँ पे मैं पुराने नियम की शिक्षिका हूँ और यहाँ मुझे समय मिलता है परमेश्वर की वचन की गहराइयों को समझने का और उनको लोगों तक पहुँचाने का लिखित तौर से और क्लासरूम्स के द्वारा। I totally love my job. I often call it the best job in the world. And I have been diving deep into the book of Exodus. The reason is because I'm writing a commentary for Baker Academic in their Baker Commentary on the Old Testament Pentateuch series on the book of Exodus. So you might be familiar with John Goldingay's work on the Psalms. He's also writing the Genesis commentary for that series, and I'm writing the Exodus commentary. But here's the problem. It's not going to be out until like 2025. मुझे मेरा जो काम है वो बहुत पसंद है और मैं इसको दुनिया का सबसे अच्छा काम मानती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं निर्गमन की पुस्तक को गहराई से समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो बेकर एकेडमिक्स की पेंटेट्यूक सीरीज़ है उसमें मैं निर्गमन की पुस्तक के ऊपर कमेंट्री लिख रही हूँ। आप लोग जॉन गोल्डिंगे की जो उन्होंने कमेंट्री लिखी है भजन संहिता के ऊपर, उससे वाकिफ़ होंगे। वो अभी फ़िलहाल उत्पत्ति के ऊपर कमेंट्री लिख रहे हैं और उसी से जुड़े हुए मैं उत्पत्ति के ऊपर कमेंट्री लिख रही हूँ। लेकिन सबसे दुखी बात यही है कि हम इसको 2025 तक पब्लिश नहीं कर सकते, उसको आप तक नहीं पहुँचा सकते। And I'm learning really cool stuff every day as I work on the commentary, and I don't want to have to wait until 2025 to share it with you. So I've started this Torah Tuesday so that you can join me in learning from the Torah along the way. Before we dive in, for those who are not familiar with me, I wanted to tell you a little bit about the work that I already have out there that you don't have to wait until 2025 to read. जैसे मैं ये कमेंट्री लिख रही हूँ उसके दौरान मुझे बहुत सारी दिलचस्प बातें पता चल रही हैं जो कि मैं 2025 तक नहीं रुक सकती आपसे बांटने के लिए। इसी वजह से मैंने तोरा ट्यूसडे स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा आप भी मेरे साथ तोरा के बारे में सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और जो मैंने काम किए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। So I did my dissertation at Wheaton College, and I studied the command not to take the Lord's name in vain, and that's been published as Bearing Yahweh's Name at Sinai by Penn State University Press. That came out in 2018. Just before that, I released this illustrated Exodus in Hebrew, which contains the entire Hebrew text of Exodus, along with these really beautiful illustrations by Keith Neely and my translation in English at the bottom of the page. So if you want to dive into the Torah and you're interested in starting with Exodus, that's a really fun resource for those who are learning Hebrew. तो 2018 में मेरी एक बुक आई थी जिसका नाम था बेयरिंग याहवेज नेम, जिसमें मैंने 10 आज्ञाओं में से जो एक आज्ञा है जो कि है परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, उसके ऊपर मैंने काम किया है। इससे ठीक पहले मैंने इलस्ट्रेटेड एक्सोडस के नाम से एक पुस्तक लिखी है जो कि हिब्रू भाषा में है और इस पुस्तक में चित्रकारी के द्वारा उत्पत्ति की किताब का पूरी कहानी बताई गई है और उसके नीचे मैंने उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद भी किया है। तो जो लोग तोरा के बारे में पढ़ना चाहते हैं और उत्पत्ति से शुरुआत करना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। Most people would probably know me for this book that was released in 2019, Bearing God's Name, Why Sinai Still Matters. This is put out by InterVarsity Press. And this book traces the theme of bearing God's name through the entire Bible, but it spends a lot of time at Sinai. It's a representation of the things that I learned when I did my doctorate. And so it's
got this is the research behind it, but it's re-presented, re-expressed for non-scholars, for the church at large. बहुत सारे लोग मुझे मेरी पुस्तक बेयरिंग गॉड्स इमेज के नाम से जानते हैं, जो कि 2019 में आई थी, और इसमें हम देखते हैं परमेश्वर की छवि को पूरे पवित्र शास्त्र में दर्शाया गया है, किस प्रकार से वो हमें सीखने को मिलता है। और ये जो मेरी किताब है, ये कलीसिया के लिए और साधारण लोगों के लिए लाभदायक है। वहीं दूसरी तरफ मेरी जो पहली किताब है, जो कि है बेयरिंग यहोवा's नेम एट साइनाई, वो शोधकों के लिए लाभदायक है। I'm working on 2 more projects right now that relate to the Torah. So the first is the Exodus commentary that I already mentioned, and the second is a companion volume to this book on being God's image. It's going to focus on the early chapters of Genesis and then trace the theme of being God's image through the entire Bible as well. So I'm in the Torah every day, one way or another, for one project or another, and learning so much and excited to share it with you. अब मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ जो कि तोरा से जुड़े हुए हैं। पहला है एक्सोडस की कमेंट्री, उत्पत्ति की कमेंट्री, जो मैं लिख रही हूँ और जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। और दूसरा है, मैं एक और पुस्तक लिख रही हूँ जो बेयरिंग गॉड्स इमेज से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है बीइंग गॉड्स इमेज, जिसके बारे में हम पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं, और ख़ास तौर से इसमें उत्पत्ति की किताब में इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। So today I'll just start with one insight that you might not notice if you're reading your Bibles in English. You would miss this. The very first verse of Exodus 1 begins with the word and. तो आइए हम तोरा ट्यूसडे की शुरुआत करते हैं। और आज जो मैं आपके सामने बांटने जा रही हूँ वो है निर्गमन की पुस्तक में से उसका पहला भाग। जो अंग्रेज़ी की बाइबल पढ़ रहे हैं जो पढ़ते हैं, वो शायद इस बात को कहीं ना कहीं चूक जाए, और जो ये बात है कि उत्पत्ति का पहला अध्याय वो और से शुरू होता है। And these are the names of the sons of Israel. So what's the significance of that? The author is telling us right out of the gate that this book is connected to Genesis, that Exodus is not a standalone story, but that it continues the narrative that was begun in Genesis. And we see this in lots of ways, as the Exodus narrative is connecting back using the same key themes and key words and carrying forward the storyline. So here's one example. और यह इज़राइल के पुत्रों के नाम। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इस बात का क्या महत्व है, इस और का क्या महत्व है। तो जो लेखक है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो निर्गमन है वो उत्पत्ति का ही एक भाग है, उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, और जो काम हम उत्पत्ति में देखते हैं वो हम निर्गमन में पूरा होते हुए उसको और आगे देख सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पद हैं जिसमें हम देखते हैं कि उत्पत्ति और निर्गमन किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। निर्गमन की पुस्तक में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि वो उत्पत्ति से एक जुड़ाव का एक तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो निर्गमन है वो उत्पत्ति से कितना जुड़ा हुआ है। उसी का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। In Exodus 1 verse 7, it reads this, "But as for the sons of Israel, they were fruitful and swarmed, and they multiplied and grew exceedingly strong, so the earth was filled with them." If you're familiar with Genesis chapter 1, you'd recognize that language from the creation mandate, where God tells the humans what their job is after he's created them. He says, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it." जो कि निर्गमन का जो पहला पद है उसका 7वां अध्याय है, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। जिन लोगों ने उत्पत्ति 1 पढ़ा होगा
और या पढ़ा है, उसमें भी परमेश्वर मनुष्य को यही आशीष देता है कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। यही समानता हम निर्गमन के पहले भाग में देखते हैं जो भी हमने पढ़ा, जिसमें यही शब्द दोबारा दोहराए गए हैं कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। So same key words there, the fruitful, multiply, earth filling the earth, all is repeated, plus the word swarmed, which is the word that's used in Genesis 1:20 and 21 to describe what the fish and the birds are going to do as they multiply. They're going to swarm. So right off the bat, we see that this story is fulfilling what God had designed in Genesis for humanity to do. यही समानता हम जो निर्गमन में है वही हम उत्पत्ति में भी देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि फूलो फलो ना, और वही चीज़ निर्गमन 1:7 में भी है कि इज़राइली संतान फूलने फलने लगी और पृथ्वी पर भर गई। और जब हम उत्पत्ति 1:20 में देखते हैं तो पृथ्वी में भर जाओ, जब परमेश्वर आशीष देता है जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए, तो वही चीज़ जो है हम निर्गमन में भी देखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति और निर्गमन की जो समानता है वो हम उसको और गहराई से समझ सकते हैं। However, there's a problem because in Exodus chapter 1, God's creation design is inverted. There are lots and lots of Israelites, good, but they're supposed to be filling the earth and subduing it. And instead, they are being subdued by the oppressive rule of the Egyptian system. So there's a problem in the fulfillment of the creation mandate, and we can see that God will step in and do something about this problem as the story unfolds. उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक योजना बनाई थी और वही योजना हम निर्गमन में पूरी होते हुए देखते हैं। लेकिन एक समस्या ये आती है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को आशीष दी थी और उनको सब लोगों के ऊपर अधिकारी बनाया था। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं आगे कि वो मिस्र की गुलामी में आ जाते हैं, और जैसे हम आगे इसको पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान कैसे निकाला अपनी रचना के लिए। So that's our tidbit for today. Check back again next week for a new video. And if you liked this one, share it with a friend, like and subscribe so you make sure you don't miss any in the future. Thanks for joining me. आप सबों का धन्यवाद। और ये वीडियो इस हफ्ते के लिए था। हम दोबारा लौटेंगे एक और वीडियो के साथ अगले हफ्ते में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।